أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم ہر خیر کا سوال کرتے ہیں اور ہر شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ صحت اور ایمان اور عافیت کی زندگی ہو، بہترین نیکیاں کمانے والی انشاءاللہ زندگی ہو۔ اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کسی سے بات کر رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہمیں دی ہے اور اس کی امانت ہے ہمارے پاس، تو اللہ تعالیٰ یہ بیکار تو نہیں دی نا۔ اللہ نے ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں بس سو کر کھا کر ڈپریشن میں دوائیاں لے لے کے اور پریشان ہو کر اس دنیا سے نہیں جانا۔ ہم نے انشاءاللہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور ہر انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فائدہ مند بنایا، ہر چیز، ہر ذرہ بھی فائدہ مند ہے، تو ہم اتنے جیتے جاگتے انسان، اور ہم اپنی زندگی سے بہترین نیکیاں کما جائیں۔ شاید بچوں کو ابھی اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یا ہم بھی اس ایج میں اتنا بودر نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اور اس طرح آپ کو موت کا یقین آنے لگتا ہے، اس طرح پھر احساس ہوتا ہے کہ اتنی زندگی گزر گئی اور ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ دنیا کے لیے جتنا بھی کما لیں، جو مرضی کر لیں، یہ سب کچھ کے ساتھ اگر ہم نے انشاءاللہ اس دنیا کے ساتھ اگر آخرت کمائی، اس دولت کے ساتھ آخرت کمائی تو گڈ، ورنہ یہ سب کچھ غم، پریشانیاں، لڑائیاں، نفسا نفسی، یہ سب بے حقیقت چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یقیناً آپ سب بھی بہت خوش ہوں گے، میں بھی خوش ہوں کہ الحمدللہ آج ہماری سورت آل عمران مکمل ہو رہی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اپنا لیسن شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ سب کی باری ہوگی، آپ لوگ ہینڈ ریز کریں گے، اور اس کے بعد میں آپ لوگوں سے ویوز لوں گی۔ الحمدللہ فجر کی نماز بہت تیزی سے پیچھے آ رہی ہے۔ پہلے تو یہاں پر 5:48 تک 45-48 تک فجر کی اذانیں شروع ہو رہی تھی، اور آج الحمدللہ 38 پر 10 منٹ پیچھے ہو گئے، 38 سے اذانیں شروع ہو گئیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ بہت اچھے سے ٹائم سے اپنی فجر پڑھیں تاکہ ہم وقت پر کلاس شروع کر سکیں انشاءاللہ، اور وقت پر انشاءاللہ اس کو مکمل بھی کر سکیں۔ چلیے آج کا لیسن دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ الہی آمین ثم آمین۔
اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ چوتھا پارہ سورت النساء، آیت نمبر 199 اور 200۔ ترجمے کی اسکرین آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے، وہاں سے دیکھیں اور اچھے طریقے سے ترجمہ دہرائیے۔ وَإِنَّا، اور بے شک، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، لمن، البتہ جو، یؤمنو، ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الیکم، طرف آپ کے، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الیہم، طرف ان کے، خاشعین، خشوع کرنے والے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، لا، نہیں، یشترون، وہ بیچتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ثمنن، قیمت، قلیلا، تھوڑی، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، اجرہم، اجر ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، سریع، جلد لینے والا ہے، حساب، حساب۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسبرو، صبر کرو، وصابرو، اور مقابلے میں مضبوط رہو، مقابلے میں صبر کرو، ورابطو، اور تیار رہو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اہل کتاب میں سے البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو نبی آپ پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی، یعنی اہل کتاب اپنی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، خاشعین للہ، وہ اللہ سے خشوع کرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ نہیں ڈالتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو، مقابلے میں مضبوطی دکھاؤ اور تیار رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ ہم نے سورت آل عمران کا آخری رکوع پڑھنا شروع کیا، اور اس آخری رکوع کی فضیلت میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے بھی ان آیات کی تلاوت کرتے۔ آیت نمبر 190 سے 190 سے 200 تک 11 آیات ہیں، صرف اونلی 11، اور ساری ہی دعائیں ہیں۔ جو جن لوگوں نے نیا نیا سبق سنانا شروع کیا تو ان کو بہت اچھا سبق یاد ہوا، کیونکہ یہ آیات بھی ذرا دعائیں اور آسان الفاظ تھے تو ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو ان آیات کو پڑھتے، اور یہ آیات آپ نے بستر پر بیٹھے ہوئے بھی پڑھی، بغیر وضو کے بھی پڑھی،
और फिर उठकर वुजू करते और तहज्जुद पढ़ते। तो दो तीन चीजें इससे पता चलती हैं। एक बात तो ये कि कभी वुजू ना भी हो और आपको जो कुरान का हिस्सा याद है आप उसको पढ़ सकते हैं। नंबर दो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अब उठना एकदम से जैसे नहीं, बल्कि उठ के बैठ के थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करके बिस्तर से उठते हैं। लेकिन अगर किसी को लगे कि वो उठ के बैठ के बिस्तर पर दोबारा सो जाएगा तो फिर उसको उठ जाना चाहिए। तो तीसरी बात इससे ये भी पता चलती है कि इन आयात को आप उठ के भी पढ़ सकते हैं, और अगर अ, आपको जबानी नहीं याद है तो आप वुजू करके देख के भी पढ़ सकते हैं। और फिर इसी तरह आप तहज्जुद की नमाज में अगर कुछ दिन देख के पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ये आयात जबानी भी याद हो जाएंगी। तो मैं पीछे से जहां से ये आयात शुरू हो रही हैं मैं वहां से रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट सारी आज बात रिवाइज करूंगी ताकि सब नए सुनने वालों को एक पता चल जाए इसके बारे में। इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। यकीनन आसमानों और जमीन की तख्लीक में और रात और दिन के आगे पीछे आने में अक्लमंदों के लिए बहुत निशानियां हैं। यानी वो इन चीजों पर, कायनात पर गौर व फिक्र करते हैं, आसमान और जमीन की पैदाइश पर गौर व फिक्र करते हैं, जिसकी वजह से वो खालिक की अजमत और बड़ाई को पहचान लेते हैं। अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में पैदा होती है, अल्लाह का खौफ और उसकी खशियत आती है, और इस तरह फिर उनके दिल में अल्लाह की याद और उसकी इबादत का शौक पैदा होता है। और फिर वो क्या करते हैं, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद लोग अल्लाह की जात की अजमत को पहचानते हैं तो फिर उसका नेचुरल नतीजा क्या निकलता है कि वो खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे भी अल्लाह ताला को याद करते हैं, हर वक्त अल्लाह को याद करते हैं। और फिर उसमें उनकी जबान ये जिक्र, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, यानी वो कभी भी उनका दिल गाफिल नहीं होता। और याद रखें, जिस इंसान से भी आपको मोहब्बत होती है, जिससे भी या जिस चीज से मोहब्बत होती है, आप उससे गाफिल नहीं होते। आजकल तो हम सबको मोबाइल से मोहब्बत है, और ठीक है, एक जरूरत भी है, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ, लेकिन आप देखें हमें कितना ज्यादा उसकी फिक्र होती है। कहीं जाना है, मोबाइल चार्ज करना है, साथ रखना है, बार बार चेक करते हैं, बार बार उसको निकाल कर देखते हैं। तो मैं एक स्कॉलर का सुन रही थी, उन्होंने कहा जिस चीज की आपको आदत डालनी है ना उसको अपने करीब कर लें, और जिस जो आदत आपने छोड़नी, जिस चीज की आदत छोड़नी है उसको दूर कर दें। तो आजकल मैं अपना मोबाइल सरहाने रख के नहीं सो रही, थोड़ा सा दूर रख के सोती, ताकि ये जो रात को लेट कर और देखने वाला सीन है ना, वो बेशक मैसेजेस देख रहे हूँ, बेशक कुछ भी, अब उसमें आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। और आपको पता है कि अगर स्क्रीन आप देखते हैं, और कितना ज्यादा डॉक्टर्स कहते हैं कि आप रात को सोने से कम से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन छोड़ दें, उसको ना देखें, आपको अच्छी नींद आएगी। आपको, अब ठीक है अज़कार सुन रहे होते हैं या कुछ और, लेकिन स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हमें इस पर से दूर कर दे, और हमारी नींद भी इबादत बन जाए, अल्लाह करे, और हमारा जागना भी तहज्जुद के लिए और फजर के लिए आसान हो जाए। तो वो, अगर आपको कुरान की मोहब्बत या कुरान पढ़ने की आदत डालनी है तो हर वक्त अपने दाएं बाएं कुरान रखें। जितना करीब कुरान होगा उतना पढ़ना खोलना आसान होगा। आजकल जो लोग सबक याद करते हैं तो उनके पास हर वक्त ही उनका पारा या उनका कुरान होता है, और अगर हम बंद करके रख देंगे तो फिर वो खोलना, उठाना, अच्छा वुजू करेंगे, कमरे में जाना है, तो बहुत सारी चीजें इस तरह रह जाती हैं। तो जिस चीज की आदत डालनी है उसको अपने करीब कर लें। तो वो क्या करते हैं, उठते बैठते और लेटते अल्लाह को हर हाल में याद करते हैं, वो कभी भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते और कायनात पर गौर व फिक्र करते हैं। तो वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस कायनात का कोई खालिक है, कुदरत रखने वाला है, मुदब्बर, और यानी ये डार्विन थ्योरी से कि खुद ब खुद वो क्या है
کہ ایک बिग बैंग हुआ और वो एक जो पूरी कायनात है वो एक एनर्जी क्लाउड था और वो टकराया और उससे सारे पीसेस हुए और खुद ब खुद दुनिया बन गई, और एक दिन होगा कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी खत्म होगा और ये सारी चीजें, डार्विन की थ्योरी तो खैर और है, ये सारी चीजें दोबारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे हो सकता है पूरी कायनात, पूरा निजाम इतना ऑर्गेनाइज, दिन आ रहा है रात आ रहा है, कोई उसमें डिस्टरबेंस नहीं हो रही, क्या ये सब कुछ खुद ब खुद चल सकता है? तो चूंकि ऐसा मुमकिन नहीं है और हमारा दीन हमें सिखा रहा है कि खालिक है, कायनात को चलाने वाले, वो हस्ती है जो इस सब कुछ को का इंतजाम कर रही है। और वो गौर व फिक्र और जिक्र के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अल्लाह ताला आपने ये सब कुछ बेमकसद नहीं बनाया, आप पाक हैं इस चीज से कि आप कोई बेकार फजूल काम करें, तो अल्लाह ताला हमें आग के अजाब से बचा ले। यानी उनकी अक्लमंदी, उनकी दानाई, जब उनको अल्लाह की मार्फत नसीब होती है तो फौरन फौरन उनके जेल से निकलते हैं, अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा ले। और फिर वो कहते हैं कि अल्लाह ताला उनको पता है कि जिसको ए रब, जिसको तूने आग में दाखिल किया तो उसको तो तूने रुस्वा कर दिया, वो तो इंतहाई खसारे में रहा, ये तो तौहीन है कि सबके सामने किसी को पनिश किया जाए। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और फिर उस दिन, कयामत के दिन, फैसले के दिन, अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए किसी को अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं होगा। और अक्लमंद इंसान को आग के अजाब का खौफ होता है, उसको रुसवाई का खौफ होता है, दोजख का खौफ होता है। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान, और फिर वो दुआ करते हैं, ए हमारे रब, अकल वालों की दुआ क्या होती है? ए हमारे रब, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान के लिए पुकार रहा था कि अपने रब पर ईमान ले आओ, तो हम ईमान ले आए। ए हमारे रब, हमारे गुनाह बख्श दे और हमारी बुराइयां हमसे दूर कर दे, और हमें नेक लोगों के साथ फौत करना, नेक लोगों के साथ। और इसके लिए हमने देखा कि अंबिया की भी ये दुआ होती थी, और यहाँ के वो दुआ करते थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, रब्बी हबली हुक्मम व अलहिकनी बिस्सालिहीन, या अल्लाह मुझे नेक लोगों के साथ मिलाना। और फिर आप देखें, जो लोग दुनिया में नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करेंगे, फिर उनको ही आखिरत की, जिसको नेकी का शौक होगा ना, वही नेकियों की सोहबत इख्तियार करेगा। वरना जिसको नेकी का शौक नहीं, वो तो कहते हैं कि दीनदार लोग शायद बहुत बोरिंग होते हैं। तो नेक लोगों को, जिनके अंदर नेकी का शौक है, इबादत का शौक है, आप देखिए ना, इंसान जो फ्रेंड्स हैं वो अपने लाइक माइंडेड होते हैं ना। अब माँ बाप तो बस अल्लाह ने दे दिए, और बहन भाई भी अल्लाह ताला ने दे दिए, शौहर भी अल्लाह ने दे दिया, ये इसमें तो हमारी चॉइस नहीं है। तो इसलिए हमें उन सब के साथ बस अच्छा रहना है, क्योंकि ये अल्लाह का इंतखाब है। और फ्रेंड्स हमारा इंतखाब होता है और हमारी चॉइस होती है। और आप सोचें जरा, हम किसको दोस्त बनाते हैं? जिससे हमारी जहनी मुताबिकत होती है, हमारी सोच मिलती है, हमारे इंटरेस्ट मिलते हैं, उन्हीं से दोस्त बनाते हैं ना। तो जिनकी प्रायोरिटी नेकी होगी, इबादत होगी, फिर वो नेक लोगों को दोस्त बनाएंगे। और जिनकी इसके अलावा होगी तो जाहिर है वो उसी को। तो जिनके साथ हम दुनिया में कंफर्टेबल हैं, अल्लाह ताला आखिरत में भी हमें उन्हीं के साथ रखेंगे। जिनकी कंपनी को हम दुनिया में इंजॉय करते हैं, जिनके साथ हम वक्त गुजारना चाहते हैं, तो बस फिर आखिरत भी उन्हीं के साथ होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमर उमा अमन अहब्बा, इंसान कयामत के दिन उसके साथ होगा जिसके साथ उसने दुनिया में मोहब्बत की होगी, दुनिया में कंफर्टेबल होगा। तो नेक लोग, अक्लमंद लोग कहते हैं, व तवफ़ना माअल अबरार, हमें नेक लोगों के साथ फौत करना, क्योंकि हो सकता है कि हम कुछ नेकी में कम हों, लेकिन उनकी नेकियां और उनके साथ मोहब्बत हमें बचा ले। आप देखें कि मुसलमानों को क्या कहा गया कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया जाए, ताकि हो सकता है कि किसी एक की नेकी की वजह से बाकी लोग भी अजाब कब्र से बच जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा उहद में जब ज्यादा सहाबा कराम शहीद हो गए और कफन भी कम थे और एक एक कब्र में दो दो लोगों को दफनाना था, तो आप सल्लम क्या कह रहे थे कि एक के साथ दूसरा उसको लिटाएं, दफनाएं कि जिसको कुरान ज्यादा हिफ्ज है, ताकि उसके कुरान की बरकत से दूसरा भी अजाब कब्र से महफूज रहे। मैं ये सोचती हूँ, ये बात तो आप सल्लम ने सिर्फ हमें सिखाई है, वरना वो तो सहाबी रसूल थे।
اور وہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوتے، اتنے کروشل ٹائم میں وہ شہید ہوئے تھے، ان کے درجے تو اتنے بلند تھے، اور اگر ان کو بھی عذاب قبر سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کریں، تو ہم سب کو عذاب قبر سے بچنے کے لیے کتنے اہتمام کی ضرورت ہے۔ اور قرآن وہ نور ہے جو انشاءاللہ قبر میں ہماری حفاظت کرے گا، انشاءاللہ ہماری نور اور روشنی بنے گا۔ تو اہل ایمان دعائیں کرتے ہیں گناہوں کی معافی کی، برائیوں کو دور کرنے کی، اور نیک لوگوں کے ساتھ فوت ہونے کی۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ عقل والوں کی دعا کیا ہوتی ہے؟ اے ہمارے رب، جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا، ہمیں وہ عطا فرما۔ اور یعنی کیا وعدہ تھا؟ کہ ایمان لا کر جو عمل صالح کریں گے تو اللہ نے کہا کہ ہم ان کو بخش دیں گے۔ یہ میں نے آیات بتائی تھی۔ اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ایمان والوں کا یقین ہے اور وہ اسی بھروسے پر دنیا میں مشکلات برداشت کرتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انشاءاللہ اس کے بدلے میں ان کو بچائیں گے اور ان کو جنت میں اعلیٰ درجات دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، فاستجاب لہم ربہم، اللہ نے ان کی دعا قبول کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تو کوئی میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ یعنی اجر کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عمل صالح کے اعتبار سے، جنت کے اعتبار سے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ یہ کام مرد کرے تو بہتر ہے اور عورت کرے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم سب ایک دوسرے میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان عقل مندوں کی دعا قبول کر لی اور ان کو خوشخبری دے دی کہ میں کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، اور اجر کے اعتبار سے، اور سب ایک دوسرے سے، یعنی مرد عورت سے ہیں، اور سارے مرد عورتوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور انہی کے سے تو یہ کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔ اور اجر کن کا زیادہ ہے؟ مرد اور عورت ہونا اجر کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ اجر کے اعتبار سے فرق کیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اور وہ اللہ کے دین، ہجرت کا مطلب بتایا تھا نا، برائی کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے، برے ماحول اور بری صحبت کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک جگہ کو چھوڑ دینا، برے ماحول اور بری صحبت کو۔ ہم تو صرف دنیا کے لیے مسلمان ملکوں کو چھوڑ کر انگریزوں کے دنیا میں چلے جاتے ہیں، صرف دنیا کمانے کے لیے۔ ہماری نسلوں کا ایمان کہاں جا رہا ہے اس ماحول میں رہتے ہوئے، اور کہاں جائے گا فردر؟ تو دنیا کے لیے۔ لیکن وہ لوگ کیسے تھے کہ انہوں نے آخرت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے وہ چھوڑ کر ہجرت کی۔ اور پھر وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں اذیت دیے گئے، یعنی مشرکوں نے جو مسلمانوں کو تکلیفیں اور اذیتیں دی، اور انہوں نے جنگ کی اور وہ لڑے، تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ، اور قتل کر دیے گئے، تو اللہ نے کہا میں ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کے ہاں ان کا بہترین بدلہ ہے، اور اللہ کے پاس یہ ان کا بدلہ ہے، اور اللہ کے پاس دینے کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اب دیکھیں بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ کائنات پر غور و فکر، اللہ کی عظمت کا احساس جب آتا ہے نا، جب اللہ کی بڑائی کا اور اس کی طاقت کا اور اس کے عذاب کا پھر احساس آتا ہے، تبھی انسان اندر سے جھکتا اور توبہ کرتا ہے اور گناہوں پر معافی مانگتا ہے، اور پھر اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہے، پھر وہ نیک صحبتیں تلاش کرتا ہے، پھر وہ قرآن کی طرف آتا ہے۔ تو فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی ہم سب کو، مسلمانوں کو۔
काफरों को जो अल्लाह ने दुनिया इतनी नवाज दी है, इतनी आसाइशें, इतनी नेमतें, और जैसे सहूलियात, और बड़ा लोग आइडियलाइज करते हैं बाहर के मुल्कों में कोई लगा कर आए, तो बस आपको नहीं पता कितना डिसिप्लिन है, आपको नहीं पता वहाँ कितनी सफाई है, आपको नहीं पता वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कितना जबरदस्त है। और हम सब ये देखते हैं कि जापान तो 2050 में जी रहे हैं, और इतना आइडियलाइज, मुझे समझ नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान मुल्कों में, मुसलमान लोगों में रह रहे हैं, वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग अपने ईमान की हिफाजत किए हुए हैं। और अल्लाह ताला रखे, और उनकी नस्लों में अल्लाह ताला ईमान को सलामत रखे। काफरों की तरक्की को देखकर बहुत इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। बहुत सारे लोग मुसलमान मुल्कों में, मुसलमान में भी रहकर हराम काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग वहां रहकर भी बहुत अच्छे तरीके से अपने दीन के और अपने बच्चों के दीन और ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये जो कहा गया ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, यानी बहुत आइडियलाइज नहीं करना। ये नहीं कि हम मुश्किलात में हैं, महरूमियों में हैं, तकलीफ में हैं, तो और काफिर वो तो बड़े रोब से जी रहे हैं, तो कोई आपको आइडियलाइज नहीं करना। हम जहां पर भी हैं, जिस तरह भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मता उन कलील, अल्लाह ने कहा वो उनकी कामयाबियां, तरक्कियां, बहुत थोड़ा फायदा है, बहुत थोड़ा। उनका ठिकाना जहन्नुम होगा, और बहुत ही बुरा। अब देखिए, दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको किस किस तरह की आजमाइशें, और उनके लिए भी हैं, ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, उनके लिए भी बहुत मुश्किलात हैं। और आग का अजाब, तो कहा ये तो बहुत ही बुरा है। लेकिन वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया अपने रब का, उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की तरफ से मेजबानी है, नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से मेजबानी है। और जो अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए बहुत बेहतर है, मुत्तकियों के लिए उनके रब के पास अजर है बेहतरीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है, मैंने अपने साले और नेक बंदों के लिए वो चीजें तैयार कर रखी हैं जिन्हें किसी आंख ने ना देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के वहमो गुमान में भी ये आया, वो नेमतों का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कि जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान वालों के लिए, लाकिनिल लजीन तको, तकवा वालों के लिए क्या कुछ अल्लाह ताला ने बनाकर रखा है। दुनिया की जिंदगी, चमक दमक, काफरों की कामयाबियां, उनकी तरक्कियां देके बिल्कुल इम्प्रेस ना हो। जो अल्लाह ने ईमान वालों के लिए जन्नत और हमेशगी की जिंदगी के में बना के रखा है, वो तो आप कहते हैं कि जापान 2050 में जी रहा है। अल्लाह ने जो कुछ जन्नत में बनाया हुआ उसका तो किसी तसव्वुर, यू कांट इवन इमेजिन के जन्नत में क्या क्या कुछ है। और ये दुनिया तो जितना भी जी लें, 40 50 60 साल बस। और आखिरत तो हमेशा हमेशा, जो कभी खत्म नहीं होनी। कब्रों में पड़े लोगों को देखें, वो कब से पड़े हैं और पता नहीं कब तक पड़े रहना है। और अगर हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, तो फिर सोचें इस 40 50 साल के आराम, आसाइशें और सुकून और नेमतों का फिर कब्र में क्या हासिल होना है। और फरमाया, वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार, और जो अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वो बहुत ही बेहतर है। अबरार, जो बहुत ज्यादा नेकी करने वाले हैं उनके लिए। बिर होता है ना नेकी, लन तनालुल बिर्रा, तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते, तो खास नेकी, नेकी करने वाले अबरार। व इन्ना मिन अहलिल किताबी लमन युमिनु बिल्लाहि व मा उनजिला इलैकुम, अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, और जो कुछ उनकी तरफ नाजिल किया गया उस पर ईमान लाते हैं, और अल्लाह से डरते हैं, खुशू इख्तियार करते हैं। और अहले किताब के पीछे क्या बात आई थी, कि वो अल्लाह की आयत को बेच डालते हैं। तो सारे अहले किताब ऐसे नहीं कर रहे, कुछ अहले किताब ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह का दीन सिखाते हैं और उनकी आयत को बेचते नहीं हैं। तो इस आयत के नजूल, शान नजूल के बारे में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब शाही हबशा नजाशी के इंतकाल की खबर आई, तो नजाशी बादशाह का, पता है ना, मुसलमानों ने मक्का से 2 दफा हबशा की तरफ हिजरत की थी, और उस बादशाह के दरबार में गए थे। तो हजरत जाफर तैयार ने
सूरत मरियम की आयत सुनाई थी, तो वो सर झुकाकर वो आयत सुनता रहा और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। और जब उसने मुंह उठाया तो उसने कहा कि अल्लाह की कसम, इस कलाम में, हज़रत ईसा के कलाम में एक तिनके का भी फर्क नहीं है। यानी वो दिल से मान गया था, उसने दिल से ईमान ले आए थे। और ये बड़ा तफसीली वाकया उसमें है बुखारी में, बहुत जबरदस्त ये वाकया है बुखारी में। तो वो फौत हुआ तो हालांकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आए थे। अब अल्लाह जाने उसके दिल का कैसा ईमान था कि उसके वफात की खबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई और कहा कि उसकी जनाजा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि हम इस पर आओ नमाज पढ़े ना, जनाजा की नमाज पढ़े। तो सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम एक हबशी की नमाज पढ़े? तो इस पर यह आयत नाजिल हुई कि अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, और जो कुछ आप सल्लम की तरफ नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं और अपनी किताब पर भी ईमान लाते हैं। उनमें भी अच्छे लोग मौजूद हैं, और वो अल्लाह की आयत को बेच नहीं डालते हैं थोड़ी कीमत से। उनका अजर उनके रब के पास है। तो आप देखें, हम जाहिरियत में, मैं इससे सोच रही थी कि हम किसी भी इंसान की जाहिरियत से कोई भी फैसला नहीं कर सकते कि वो कैसा है या उसका अंजाम क्या होने वाला है। इमाम अहमद ने हजरत हफ्शा के मुतालिक एक जो लंबी हदीस बयान की है। हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने जब नजाशी के सामने सूरत मरियम की तिलावत की तो वो और उसके पास बैठे दीगर उलमाए नसारा इतना रोए कि आंसुओं से उनकी दाढ़ियां भीग गईं। यहूद में से बहुत कम ऐसे लोग थे और ईसाइयों में से फिर भी लोग थे, जैसे कुछ लोग यहूद में से, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम, वो भी उनमें से बेचारा कुछ लोग अच्छे थे। तो हमें किसी की जाहिरियत पर कुछ भी फैसला नहीं कर सकते। अल्लाह ने कहा उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की आयत को नहीं बेचते, अल्लाह का खुशू अपने दिल में रखते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत जल्द हिसाब लेने वाले हैं। आखिरी आयत बहुत ज्यादा अहम है और बहुत तफसील तलब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इसबिरु सबर करो, वसाबिरु और मुकाबले में सबर करो, वराबितु और डटे रहो, जमे रहो, तैयार रहो। तो एक एक लफ्ज को देखते हैं। सबसे पहले ओवरऑल जो इस आयत से पता चलता है कि मोमिन दीन पर सबर और इस्तिकामत इख्तियार करने वाला होता है। यहाँ पर ईमान लाने वालों को कहा गया सबर करो, खा तंगी हो या खुशहाली, आसानी हो, तंगी हो या आसानी, खुशी हो या गम, हर हाल में इस्लाम पर जमे रहें, इस्लाम को नहीं छोड़ना। अब सबर के तीन मतलब हैं जो पहले भी मैंने एक दो दफा बताए हैं। अब एक दफा फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबर के तीन मतलब बयान किए गए हैं, या तीन तरह से सबर होता है। नंबर एक, अल्लाह की इबादत पर सबर करना, इताअत पर सबर करना। दिल नहीं बेचारा तो उठ के नमाज पढ़नी, कुरान पढ़ना है। जो भी अल्लाह ताला के अहकामात हैं। सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह ने कहा कि इससे मुराद फराइज पर सबर करना है। अल्लाह का हक क्या है उसकी बात मानना, अल्लाह की इताअत पर सबर करना। और फिर नंबर दो, दूसरा सबर क्या है? बुराई को छोड़ने पर सबर करना। जैसे मैं बहुत दफा ये बात कहती हूँ कि एक मोबाइल है, मेरे हाथ में है, हर तरह की सहूलत मुझे मुयस्सर है, और कोई मुझे देखने वाला नहीं, किसी ने मेरा मोबाइल नहीं चेक करना। लेकिन और एक एक बटन प्रेस करने से बहुत सारी बुराइयां भी उससे देखी जा सकती हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ जो है वो हमें कोई गलत चीज और हराम चीज ना देखने दे। तो ये चीज क्या है? ये सब्र है, अपने आप को रोक कर रखना। अब आप देखें कि अगर आप कुछ अच्छा भी सुन रहे होते हैं तो साथ साथ और बहुत सारी चीजें भी आ रही होती हैं, चाहे आप फेसबुक पर हों, चाहे आप यूट्यूब पर हों। पता नहीं, यूट्यूब पर भी आप देखें बहुत सारी गंदी चीजें भी, म्यूजिक भी आ रहा होता है, और वो कोई आप अज़कार सुन रहे होते हैं, बाज़ औक़ात तो आप तिलावत सुन रहे हैं, सूरत मुल्क भी लगाई होती है ना, तो उसमें भी कोई इश्तिहार आ जाते हैं। तो क्या हम बैठ के देखने लग जाते हैं? हम उस म्यूजिक को सुनने लगते हैं, फौरन फौरन उसको स्किप कर देते हैं उस ऐड को। तो बुराई की ताकत और इख्तियार रखने के बावजूद अपने आप को उससे बचाना, ये है सबर।
नफ्स को गलत कामों से बचाना, फिर ख्वाहिशात पर को से अपने आप को रोकना, बुराई नहीं सिर्फ, गलत ख्वाहिशात से भी। और फिर उसके बाद तीसरा सब्र क्या है कि कोई गम, कोई नुकसान, कोई तकलीफ के मौके पर अपने आप को नेगेटिव रिएक्शन से रोकना, ये भी सब्र है। ठीक है, तो गलत चीजों पर से बचना सब्र है, नेकी पर इस्तिकामत सब्र है, और इसी तरह किसी गम, तकलीफ, नुकसान, फौतगी, इसी से भी बहुत रोना पीटना, वावेला, बस अल्लाह का फैसला है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह की रजा पे राजी हैं, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। और दुनिया तो आने और जाने का नाम है, जाना तो है सबने, कोई पहले और कोई बाद। तो इस सब कुछ पर सबर सबर करो। वसाबिरु, साबिरु का मतलब है मुकाबले में सबर करना, मुकाबले में, वो दुश्मन के मुकाबले में, मुसीबतों पर। और ये जो साबिरु है वो सब्र से अगली स्टेज है, यानी मोर्चों पर डटे रहो, मैदानी जंग में हर वक्त चौकन्ना, जिहाद के लिए तैयार रहना। वराबितु, मुराबता कहते हैं कि जमना भी, और रिबात जोड़ कर रखना, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात पर अपने आप को बांध कर रखना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ऊंच नीच है, ज्यादतियां हैं, बस उनको दरगुजर करके बस रिश्तों को जोड़ कर ही रखना है इंशाल्लाह। और दुश्मन के मुकाबले में हर दम तैयार रहना। ये रिबात के की कुछ और वजाहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि नागवारी की हालत में मुकम्मल वुजू करना, मस्जिदों में दूर से चल कर जाना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करने को भी रिबात कहा गया। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे अमाल ना बताऊं जिनके करने से अल्लाह ताला गुनाह मिटा दे और दर्जात बुलंद फरमा दे। सहाबा रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, जरूर, क्यों नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरानी और नागवारी के बावजूद कामिल तरीके से वुजू करना। अब ठंडा पानी है, आप तहज्जुद के वक्त उठ रहे हैं, बिस्तर से निकलने को दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन आप छलांग लगा के उठते हैं और फटाफट से वुजू कर लेते हैं और शैतान को भगा देते हैं, तो ये भी रिबात है। तो अल्लाह ताला ने तहज्जुद के वक्त में, आप देखें कैसी आयत सुनाई, अगर हमें मतलब आता हो और हम बिस्तर पर बैठकर इन आयत को पढ़े, और जब हम इस पर पहुंचे, इस बिरु व साबिरु व राबितु, तो फिर आप देखें कोई सुस्ती कर सकता है? इताअत पर जमना ही तो सब्र है, और हम अल्लाह से कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम सब्र करो और जमे रहो। और मुराबता, आप सल्लम ने फरमाया कि तुम्हें ऐसे अमाल ना बताऊं कि जिनके करने से अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह मिटा दे और दर्जात बुलंद फरमाए। साहबा कराम ने अर्ज किया, जरूर, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लम। आप सल्लम ने फरमाया, गरानी और नागवारी के बावजूद कामिल तरीके से वुजू करना, मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदम चलकर दूर से आना, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, ये तीनों काम अजरो सवाब के एतबार से सरहदों पर मोर्चा जन रहने की तरह हैं। सैयदना सहल बिन साद साइदी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में एक दिन पहरा देना दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। सहल बिन साद ने बयान किया, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जन्नत में एक कोड़े जितनी जगह दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर है, और अल्लाह ताला के रास्ते में सुबह को या शाम को थोड़ा सा चलना दुनिया और माफीहा से बेहतर है। सैयदना फुजाला बिन अबीद रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, जी, जो अल्लाह सिवाय उसके हर सॉरी नबी सर ने फरमाया, हर उम्मत के अमल को खत्म कर दिया जाता है,
ہر عمل کے عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہوا، اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور وہ قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کی راہ میں سرحدوں پر پہرا دینا، تو یہ اچھا۔ اب سرحدیں بھی دو طرح کی ہیں نا، اب اس کے جہاد کی تو بہت ساری احادیث ہیں لیکن میں صرف ایک ہی سنا رہی ہوں۔ لیکن اس کے آگے آپ دیکھیں کہ جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں، اور اس میں ایک جہاد ہے جو ہم سرحدوں پر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سرحدوں پر جہاد کیا جا رہا ہے۔ ایک ہے زمینی جہاد اور دوسرا ہے ذہنی اور قلبی جہاد، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت۔ ایک جنگ میدان جنگ میں لڑی جاتی ہے اور ایک جنگ کیا ہے؟ انٹلیکچوئل وار ہے، جو آج کے دور میں بہت زیادہ ہے۔ سرحدوں کی پہلے کسی دور میں وہ جب ڈش لگی اور فلمیں، انڈین فلمیں دیکھنا یا انگریزی فلمیں، تو اس کو اتنا زیادہ برا سمجھا گیا، اور لیکن ہوتے ہوتے اب آپ دیکھیں کہ کوئی ایک اونچا سانس امریکہ میں بھی لے تو وہ ایک دم سے میڈیا، موبائل پر دنیا کے ہر کارنر میں ہر اچھائی اور برائی فوراً پھیل رہی ہے۔ اس میں تو اس انٹلیکچوئل وار میں تو ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے اپنی نسلوں کے نظریات کی اور ان کی ذہنی اور قلبی حفاظت کریں۔ اس ذرائع ابلاغ کی جنگ میں ہمیں جنگ لڑنی ہے، اپنی نسلوں کو، اسلام کو نئی نسلوں تک پہنچانا ہے، اور اسلام پر لگے الزامات کو دور کر کے اپنی نسلوں کو اس دین کے بارے میں مکمل آگہی دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں برائی کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، ہمارے بچے کارٹونوں میں کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے فلموں میں، انگریزی بچوں کی بھی ہیں، تو ان میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جتنے گھنٹے ہمارے بچوں نے کارٹون دیکھے، کیا اتنے گھنٹے ہم نے ان کو دین کی بات بتائی؟ کوئی 1% بھی آپ سوچیں ذرا، تو ہماری نسلوں کے ایمان کا کیا بنے گا؟ ان کے اندر کہاں سے شوق آئے گا قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، دین کی بات سیکھنے کا؟ دیکھ جو رہے ہیں وہ سارا دن، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے۔ تو ضرورت انٹلیکچوئل انویژن، ہمیں فکری اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ کا بچہ آدھا گھنٹہ کارٹون دیکھ رہا ہے، 1 گھنٹے کی انگلش مووی دیکھ رہا ہے، بے شک وہ اینیمیٹڈ ہیں، تب بھی کوئی گند خرابہ تو اس سے جا ہی رہا ہے نا، چلے نہیں جا رہا، کچھ بھی ہے۔ اسلام کتنا گیا بھائی، دین کتنا بتایا، قرآن اور سنت کا علم کتنا دیا، نماز کی اہمیت پر کتنی بات کی، تو پھر یہ کیا نکلیں گے بچے کل؟ گھنٹوں کے حساب سے وہ ٹی وی دیکھیں اور پھر ہم انہیں کہیں وہ اٹھ جائیں نماز کے لیے، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ورابطو، یہ جہاد تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہو گئی ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اور لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر اور صبر پر دوام اور دشمن سے ہوشیار رہنا فلاح کا راستہ ہے۔ جس نے یہ فلاح پائی وہی کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ الحمدللہ، 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 وما توفیقی الا باللہ، واللہ الموفق، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، ہماری قرآن پاک کی 2 بڑی صورتیں الحمدللہ ہم نے پڑھ لیں، جن کو ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الزہراوین، کہ ان 2 صورتیں یہ چمکنے والی صورتیں ہیں، ان کو بار بار آپ دیکھیں کہ اس ٹائم میں ہم نے دین کا کتنا بڑا حصہ پڑھ اور سمجھ لیا ہے ان 2 صورتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں بار بار پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آج
इस क्लास में मुकम्मल हुई हैं, हमारी जिंदगियों में ये नहीं खत्म होनी चाहिए। और रूटीन रखें, जैसे हमने सूरत अल बकरा के बारे में रूटीन रखी कि इंशाल्लाह हम उसको पढ़ते रहेंगे और पढ़ते हैं हर रोज भी उसका कुछ ना कुछ हिस्सा। तो आले इमरान को भी अपनी रूटीन में शामिल करना है इंशाल्लाह। तो दुआ कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह उसके बाद अब सब लोगों के व्यूज होंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीका ला, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। अल्लाह, हमने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सुना, जो कुछ सीखा, जो कुछ सिखाया, उस सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अगर कोई बात गलत ज़बान से निकल गई हो तो हमारे इल्म की इस्लाह फरमा। हमारे ही अमल के शर से महफूज रख, नेकी की तौफीक अता फरमा, इस पर इस्तकामत अता फरमा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। या अल्लाह, हमें हमारे शौहरों से और हमारी औलादों से आंखों की ठंडक अता फरमा और इन्हें मुत्तकीन का इमाम बना। हमारी नस्लों में कुरान पढ़ना, समझना, सीखना, सिखाना हमारे बच्चों की हॉबी बना दे। या अल्लाह, उनका ओढ़ना बिछोना इस कुरान को बना दे। या अल्लाह, जो गलतियां हमसे हो गई उनसे दरगुजर फरमा। आइंदा हमें इससे ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से और इससे ज़्यादा रेगुलर कुरान सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमा। इन कोशिशों को हमारे नामा अमाल की हसनात में शामिल फरमा। अल्लाहुम्मा अंतज अल कुरआन रबी क़ल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाब हम्मी। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना वजअलहु अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह, हमारे वालिदैन और अजीज़ो अकारिब, रिश्तेदार, शौहर, बच्चे, दोस्त अहबाब, जो जो लोग इस दुनिया से चले गए, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा। या अल्लाह, उनको जन्नतों में बुलंद दर्जे अता फरमा। या अल्लाह, ये अभी कुछ दिन पहले हमारे स्टाफ के शौहर फौत हुए, एक रिश्तेदार फौत हुए, और जो भी अचानक जिन जिन की भी डेथ हुई, जहाँ पर भी हुई, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा। जिन्होंने अपनी आखिरत के लिए बेहतरीन तैयारियां की और जो लोग ऐसे ही चले गए, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा। हमारी दुआओं को उनके लिए कबूल फरमा, उनके बुलंद दर्जात फरमा, और जो जिंदा हैं उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। आफियत की, ईमान की, सेहत की पुरसकून ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह, तो हमें जितनी भी ज़िंदगी दे, या अल्लाह इसको आखरत बनाने वाली हो। या अल्लाह, जो माल तूने दिया उसको अपने रास्ते पर खर्च करने की तौफीक अता फरमा। हमें जो औलादें दी हैं इनको तेरे दीन के लिए वक्फ करने वाले हों। इलाहुल आलमीन, सबके दिलों में जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको कबूल फरमा। जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह, जो रिश्तों के लिए, या अल्लाह, जो अपने शौहरों की तरफ से परेशान हैं, या अल्लाह उनको आसानियां अता फरमा। या अल्लाह, सबकी औलाद को नेक बना, वालदैन की आंखों की ठंडक बना।
یا اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یا اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، دنیا کے گھر میں وسعت دے، قبر کے گھر میں وسعت دینا، آخرت کے گھر میں وسعت دینا، اور ہمیں کفایت کرنے والا رزق حلال عطا فرما. یا اللہ، رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے. یا اللہ، ہمیں بہترین عبادت کی، بہترین صدقہ و خیرات کی، بہترین ذکر اذکار کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ، تو ہماری راتوں کی عبادتوں کو قبول فرمانا، دن بھر کی عبادتوں کو. یا اللہ، تو ہمیں اس سے جو مقصد ہے وہ تقوی عطا فرما دے، ہر برائی سے بچنے کی طاقت، ہر نیکی کو کرنے کی قوت تیرے اختیار میں ہے. یا اللہ، تو ہمیں عطا فرما. اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنانا، جہاں جہاں لوگ قرآن پڑھنے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ، جنہوں نے خاص طور پر مجھے دعا کے لیے کہا، ان کی ہر جائز خواہشات کو قبول فرما، ہر مسئلے کو ان کا حل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، اب آپ لوگ اپنے ویوز دیجئے کہ آپ لوگوں نے ان دو صورتوں سے کیا سیکھا. جی، سب سے پہلے آپ ہینڈ ریز کریں گے تو پھر میں اس کے بعد ان کو انمیوٹ کروں گی انشاءاللہ. تو منیبہ امجد، آپ اپنا تعارف کروائیے گا، آپ کہاں سے ہیں یہ بھی بتائیے گا تاکہ اس کے بعد بات آگے کی جا سکے. جی، السلام یاسمین علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی منیبہ. میں منیبہ امجد ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ ہوں. کلیئر ہو گئی الحمدللہ. 11 چک سے سبین ریشم باجی کے پاس میرا گھر ہے ساتھ ہی. تو جو میں نے سورہ آل عمران سے سیکھا ہے، سب سے پہلے آیت نمبر 104 میں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ضرور ہو تم میں سے ایک گروہ جو دعوت دے طرف خیر کے، اور جو حکم دے نیکی کا، اور جو روکے برائی سے. تو میں نے اس دن ارادہ کیا تھا اور دعا کی تھی اور کوشش بھی کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں اس گروہ کا ممبر بنوں گی جو خیر کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا انشاءاللہ. اور غزوہ احد میں ہم نے ہند بنت عتبہ کا واقعہ پڑھا تھا. تو ان کے کردار سے جو میں نے سیکھا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے مقصد کے ساتھ بہت مخلص تھی. اگر وہ دشمنی پر تھی تو نمبر 1 پہ، اور اگر وہ دینیت پہ آئی تو بھی نمبر 1 پہ. تو میں سوچی تھی ہم اپنے مقصد کے ساتھ کتنا مخلص ہیں، ہم نے کیسی کوشش کی اپنے دین میں اپنے مقصد کے ساتھ. ماشاءاللہ، ویری گڈ. وہ اسلام لانے کے بعد بھی ڈری نہیں لوگوں کے باتوں سے کہ اب سب کہیں گے یہ تو ایسی تھی اب ویسی ہوگی. انہوں نے بھرپور کوشش کی، نمبر 1 پہ بھی رہی. سب سے پہلے جیسے انہوں نے کھانا پیش کیا تھا آپ وسلم کو فتح کے ویری گڈ. فتح مکہ کے موقع پر. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب جزاک اللہ خیر. جی منیبہ. جی یاسمین بھٹی. جی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. ہو نہیں رہا اور باجی. اچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی باجی السلام علیکم. جی بس آپ جلدی جلدی بات کرتے جائیں نا، سب کو انمیوٹ کر دیا گیا ہے. سویرا میں کر رہی ہوں سب کو انمیوٹ. جس کا مائک جی اوپن ہو السلام جائے وہ بولے. علیکم. بات وعلیکم کروں میں باجی؟ السلام. جی جی ضرور پلیز. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم قرآن پاک سے اس طرح جڑ گئے کہ بس اب ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اس یہ دو بڑی آیات ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. دیکھیں سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران میں بہت ساری مماثلت تھی. میں نے اس پہ کافی غور و فکر کیا ہے، پھر کسی ٹائم ڈسکس کریں گے. آج جو عمل کے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو آخرت میں موسٹ فیوریٹ چیز یعنی جنت الفردوس کی خواہش ہے ہم سب کو. تو ہمیں دنیا میں موسٹ فیوریٹ چیز مال، چیزیں، دولت، صلاحیت، سب چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنی ہوں گی. تو اس آیت نے جو چوتھا پارہ سٹارٹ ہوا اس میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس نے بہت اٹریکٹ کیا اور بہت میں نے لوگوں سے شیئر کیا. جس سے کیا سب چونک گئے کہ موسٹ فیوریٹ چیز دینا
पढ़ते तो सब है, मगर इस तरीके से उसको तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ जब हम पढ़ते हैं तो चीजें क्लियर होती हैं और दिल पे हाथ रखते हैं कि वाकई मोस्ट फेवरेट देना कितना मुश्किल है, मगर मोस्ट फेवरेट पाने के लिए देना बहुत जरूरी है। हम्म। और जंग अहद के बाद का जो पस मंजर था, सहाबा कराम की जिंदगी, उनका रद्द अमल, वो सारी चीजें वो हमारे लिए अमली तौर पे हमारे अपने लाइफ के अंदर उनका बहुत बड़ा कैरेक्टर है और उसको समझना बहुत जरूरी है। अमल के लिए अगर आप बात करें ना बाजी, तो सारी की सारी ही आयत जो हैं वो इसमें अमली आयत हैं, और जिस तरह हमने यहाँ पे तफसील के साथ उन पे बहस की और उनको अपनी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। शामिल किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हमारे लिए बहुत एक चेंजिंग है बहुत जिंदगी की, लाइफ की। मैं कहती हूँ मेरे लिए एक रिक्वेस्ट है सबके लिए कि जो कुरान ना भी पढ़ रहे हो, नहीं भी कुछ कर रहे, तर्जुमा तफसीर नहीं समझ रहे, तो वो काइंडली सूरत फातिहा और सूरत आल इमरान जरूर दिल से और तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ पढ़ें, समझें और फिर इस पे तदब्बर करें दोनों आयत में क्या ममासलत क्या है, और ये दोनों आयत हमसे क्या डिमांड कर रही है, हमें क्यों किस तरीके से सिफारिश करेंगे, हमारे समझेंगे तो वो हमारी हुज्जत करेंगी, सिफारिश करेंगी, हमारे लिए साया है। सारी जो इसकी नेमतें हैं वो समझने के बाद और उस पर गौर व फिक्र तदब्बर करने के बाद है, दुनिया की तमाम चीजें इन दो सूरतों में आ गई हैं। जिसने ये दो सूरतें पढ़ ली वो इंशाअल्लाह ताला सूरत नास तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने कबूल किया तो जरूर। जजाक तो जजाकल्लाह। ये दुआ है, हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला सब पढ़ें इसको, इन दो सूरतों को। आमीन आमीन सुमा आमीन। जी, नेक्स्ट है जज़ाकल्लाह। कलसूम इरफान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मैं वरहमतुल्लाह। मैंने इस आयत से सूरह आल इमरान की आयत नंबर 114 में जो है ना, वयुसारिऊना फिल खैराती, यानी हम एक दूसरे से अब बाकी मामलात में तो जल्दी करते हैं लेकिन नेकियों में हम तगोदो का शिकार रहते हैं। कभी सोचते हैं अभी कर लेंगे, कभी कहते हैं बाद में करेंगे। तो नेकियों में सबसे पहले हमें दौड़ लगानी चाहिए और अपने मामलात को फिर बाद में देखना चाहिए, जबकि हम सोचते हैं कि हम दुनिया में पहले ही दौड़ लगा जाएं और नेकियों में हम जो है सोचते रहते हैं कि अभी नहीं, आज नहीं तो कल करेंगे। और इसमें पहले हुक्म दिया गया है कि मतलब इसी आयत का हिस्सा है ऊपर के अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर का हुक्म देना है, यानी नेकी का हुक्म देना है और बुराइयों से मना करना है। और इसके लिए हमने सबसे पहले खुद पे ये जो है ना इम्प्लीमेंट करना है कि हमने खुद को जो है नेकियों में आगे आगे बढ़ाना है और जो बुराइयां हैं और बुरे काम हैं उनसे हमने खुद को रोकना है। तो ये जहाद बिन नफ्स भी है, क्योंकि हमने इसमें ग़ज़वा उहद के वाक़यात भी पढ़े हैं और सहाबा कराम और सहाबियात की इस्तक़ामत के मुतालिक भी हमने काफ़ी मतलब हिंद बिनते उतबा का हो गया और बाकी लोगों का भी पढ़ा है। तो हम लोग भी आजकल का जो अमली जहाद है हमारा यही है कि हम नेकियों में दौड़ लगाने वाले बन जाएं और दीन की ज़्यादा से ज़्यादा हम खुद भी अमल करने वाले हों और आगे दूसरों तक भी पहुंचाने वाले हों। और इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि हम कुरान से जुड़ जाएं, अल्लाह के कलाम से जुड़ जाएं और इसमें मतलब दुनिया जिंदगी के सारे ही जो हमें असूल ज़वाबित बताए गए हैं ना, तो वो इसी में है। और सूरह आल इमरान और सूरत अल बकरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हुई। इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और हमारी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली आना शुरू हुई है। जज़ाकल्लाह खैर। जजाकल्लाह खैर। जी, सबा असलम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मैंने वरहमतुल्लाह। सूरह आल इमरान से ये सीखा है कि इंसान का अगर इरादा पक्का हो और अल्लाह ताला की मदद का वादा आ जाए, तो अगर इंसान बशर्ते आदम की औलाद होने के और गलती पर होने के अगर दर्रे से नीचे भी सहाबा इकराम नीचे उतर आए थे, उनसे हुक्म अदूली दानिस्ता नादानिस्ता हो गई थी, तो लेकिन अल्लाह पाक की मदद का वादा था, तो अल्लाह ने खालिद बिन वलीद और उसके साथियों के दिल में जो था फिर भी रोब डाले रखा कि वो तीरों की बौछार करने के बावजूद, मुसलमानों को जख्मी करने और बछाड़ने के बावजूद वो वहां से चले गए, क्योंकि अल्लाह की मदद का वादा था। तो इंसान भी जब सब्र की पहली स्टेज पे होता है, तो वो सबसे पहले जो है वो अपने जगह छोड़ने की बात करता है कि मैं तो सब्र कर रहा हूँ लेकिन मुझ पे तीरों की बौछार जो है वो चारों तरफ से हो रही है, तो मैं यहाँ हम्म। से खिसक जाऊं। लेकिन अगर हम वहीं अपने साबित कदमी से खड़े रहें, तो अल्लाह पाक जो है वो दुश्मन के दिल में या जो हम पे जुल्म कर रहा है या जबर कर रहा है उसके दिल में अपनी साख बिठा देता है और अल्लाह ताला उसको वहां से डिस्प्लेस कर देता है,
جیسے کہ وہاں سے وہ خالد بن ولید اور ان کا سارا دستہ جو ہے وہ چلا گیا تھا اور جنگ بھی ڈرا ہو گئی تھی. تو ہم جنگ ویری بھی گڈ. ڈرا ہونے کا انتظار نہیں کرتے, ہم وہیں کھڑے ہو کے تو اپنے حوصلے پست کرنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب تو میں نے تو اتنا صبر کر لیا ہے, تو یہ تو صبر کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے جہاں اللہ کا ساتھ لکھ دیا گیا ہے. تو بس آپ پھر اگر صبر کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر جزا آپ موت کے بعد کی بھی وہ ٹھان لیں تو وہ آپ کو بڑی ہے. تو ویری دنیا میں گڈ. ضروری نہیں ہے کہ اس کا اجر دیا جائے. بہت بہت اچھا پوائنٹ آپ نے شیئر کیا ہے. ویری گڈ, جزاک اللہ خیر صبا. اللہ تعالیٰ آپ سے اس کو قبول کرے. جی, اور کسی نے اپنے ویوز دینے ہیں؟ اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے؟ نصرت خان. رسول جی اللہ نصرت. صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سورہ آل عمران سورہ بقرہ دوبارہ دو بادلوں دو سایوں دو روشنیوں کی صورت میں ظاہر ہو کر جھگڑیں گے. آیت 199 میں اللہ کی محبت کی جھلک. اہل کتاب جو ایمان لائے ان کی خوبیاں. اللہ پر ایمان, قرآن و سنت پر ایمان, خشوع و خضوع کرنے والے. ان کی کتابوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا اس کو بدلا نہیں. آیا 200 کامیابی کا راز 4 کاموں میں. صبر کرو, اجتماعی صبر کرو, ایک دوسروں کے مقابلے پر صبر کرو, آپس میں جڑے رہو, اللہ سے ڈرو. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. آپ نے تو پوری سورت کا نچوڑ بتا دیا ہمیں. اور بھی آپ بھی جو سمجھا کر ہے نا باجی, وہ بھی لکھ کر ابھی یاد کری ہوں. اللہ کی عبادت پر صبر کرنا اور برائی کو چھوڑنے پر صبر کرنا, روک کر رکھنا, غم تکلیف پر نگیٹیو کی چیزوں پر رونے پر صبر کرنا. الحمدللہ, الحمدللہ. نصرت جی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اور یہ سارے جو ہم نے الفاظ کہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے حق میں حجت بنائے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.